Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताज़ा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ आज चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। India and the European Union sign a historic trade deal. Prime Minister Narendra Modi and President of the European Commission, Ursula von der Leyen, hailed the agreement as a mother of all deals. Benchmark domestic indices end higher. Sensex adds over 320 points to close at 81,857 points. Nifty settles at 25,175. And major Asian indices close with gains. भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने समझौते की सराहना करते हुए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। प्रमुख घरेलू सूचकांक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स में 300 से अधिक अंकों की तेजी आई। निफ्टी 25,175 पर हुआ बंद और प्रमुख एशियाई सूचकांक तेजी में रहे। And before we take our lead story, here is a disclaimer announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And let's have a look at our lead story now. India and the European Union today exchanged the historic Free Trade Agreement, FTA, following the India-EU summit between Prime Minister Narendra Modi, President of the European Council Antonio Costa, and President of European Commission Ursula von der Leyen in New Delhi. India and the European Union also exchanged several agreements in the fields of trade, security, defense, partnership, mobility, disaster risk management, and green hydrogen. In his joint statement following the exchange of agreements, Prime Minister Narendra Modi termed the free trade agreement as historic. आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। Prime Minister Narendra Modi said this will boost investment, form new innovation partnerships and strengthen supply chains at the global level. He noted that India-EU partnership is for the global good. He opined that there is a churning in the global order today and India-EU ties will bring stability in this. In a statement, President of the European Council Antonio Costa said that today's summit sends a clear message to the world that India and the EU stand together as strategic and reliable partners at a time when the global world is being reshaped. In a statement, President of the European Commission Ursula von der Leyen termed the India-EU FTA as a mother of all deals. India has risen and Europe is truly glad about it because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous and more secure and we all benefit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच की भी अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूरोपीय संघ में भारतीय निवेश लगभग 40 अरब यूरो तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि R&D, विनिर्माण और सेवाओं समेत सभी क्षेत्रों में भारत और यूरोपीय कंपनियों के बीच गहरा सहयोग है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि आज पूरा हुआ FTA भारत के लेबर इंटेंसिव
उत्पादों के लिए यूरोपीय संघ के बाजार में प्रवेश आसान करेगा। पुनीत, क्या कहेंगे आप इसे, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है? भारत और यूरोपीय संघ एक्चुअली 27 देश हैं, सो बहुत ही मतलब सुनने में ही इतनी बड़ी चीज़ लगती है। आप हमें बता सकते हैं कि भारत के लिए इसके क्या प्रमुख फायदे हैं? जैसे सोनू आपने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ट्रेड एग्रीमेंट है, ना सिर्फ भारत और यूरोपीय पॉइंट ऑफ व्यू से, पर मुझे लगता है पूरे विश्व के, यदि हम एक आर्थिक व्यवस्था को देखें तो विश्व के लिए बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक इवेंट है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जैसे 27 देशों का एक ब्लॉक है, एक समूह है, वो अगर हम मिलाएं सबको, पूरे जीडीपी को मिलाएं, तो वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी करीब के रूप में उभरती है। यानी वो चाइना से ज़्यादा बड़ी एक इकोनॉमिक ब्लॉक है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। और भारत के साथ ये जो जीडीपी का हम, क्योंकि भारत जो है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कंबाइंड करीब 25%, यानी 1/4 विश्व का जीडीपी इन दोनों देशों के बीच का, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का टोटल है। और जो टोटल ट्रेड है वो 1/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है पूरे, ना सिर्फ भारत और यूरोप के बीच में, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, ट्रेड सिनेरियो है, उसको वो असर करने वाला है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। ऑफ कोर्स जो प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि भारत के लिए एक पूरा नया मार्केट है, 27 मार्केट्स हैं, 27 कंट्रीज की मार्केट्स हैं, वहां पर हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा पाएंगे। और खासतौर से मेरा ये मानना है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, स्मॉल कंपनीज हैं, वो अभी तक इन मार्केट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाती थी। सिर्फ बड़ी कंपनीज ही यूरोप में अगर किसी को अपना माल बेचना होता था उस मार्केट में, तो बड़ी कंपनीज ही जिनका या वहाँ पर कोई टाइप्स हैं या वहाँ पर उनके पेरेंट कंपनीज हैं, वो ट्रेड ज़्यादा डोमिनेट करती थी। पर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो भी आराम से इन मार्केट्स में हम जा पाएंगे। करीब अगर मैं देखता हूं तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच का ट्रेड अभी $135 बिलियन का ये ट्रेड है, जिसमें $75 बिलियन के हमारे एक्सपोर्ट्स हैं और करीब $60 बिलियन के हम इंपोर्ट्स करते हैं। यानी अभी $15 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस है। एक बहुत, और ये ऐसा अनुमान है कि ये डबल हो जाएगा आने वाले 4 या 5 वर्षों में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये एक इवेंट है हमारे लिए। Puneet, just to put things in perspective, the free trade agreement's objective is to draw down the duties from, say, 55%, 25%, 27% to a 0%, zero duty access, so that there is free trade. In this case, we've seen 0%, zero duty access and 10% duty is going to be imposed by the EU, and this is going to take effect from 2027. This is also a follow-up from the free trade agreements with the United Kingdom and Australia. So we're looking at earnings in euros, British pound sterling, and the Australian dollar as well. So apart from MSMEs who will clearly benefit by augmenting the supply chain, how do you see listed companies benefit in terms of their earnings? Because, you know, of all the headwinds that we've had with exports to the US and the tariff policy imposed, how do you see their earnings go up and their valuation? So Arjun, clearly the trade between Europe and India is largely dominated by large companies, which are, many of them are listed companies, and they impact not only the trade statistics, they also impact investor sentiment in the two countries. And I think when the trade between India and Europe goes to beyond $200 billion plus in next 4 or 5 years, it will be dominated largely by these listed companies. And I'm sure these new opportunities, new markets, expansion of margins because of lower tariffs, it will all lead to more earnings for these companies, and therefore I expect the markets to react positively. In fact, today the stock market did react very positively to this agreement. We saw early morning trade was actually quite nervous, the markets were down, and then as the details of this trade deal came up, we found the stock markets in India, they went up quite a bit, and I think that is a big vote up for the deal. Going forward, as more details from the deal will become available to the markets and market players, I think more and more companies will react to that positivity in coming days.
एक्सेस की बात कर रहे थे, तो सर्विसेज में भी बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं, 144 EU सब सेक्टर्स, जिसमें IT, प्रोफेशनल, एजुकेशनल सर्विसेज, जहां पर प्रिडिक्टेबल एक्सेस प्रदान किया जा रहा है और मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी को बेटर किया जा रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो जाना चाहते हैं? देखिए सोनू, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसकी जो इसके दूरंदेशी जो असर होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। देखिए अभी जो इंडिया और EU का जो ट्रेड है सर्विसेज का, वो $84 बिलियन का ट्रेड है और हम ज़्यादातर IT सर्विसेज में एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन को। लेकिन आने वाले समय में अगर ये एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट होता है, जो उसकी स्पिरिट है उसमें, तो आप देखेंगे कि भारत से जो स्किल्ड लेबर है वो हम काफ़ी बड़े पैमाने पे यूरोप में वो जा पाएगी। अभी यूरोपियन, जो हम एनेक्डोटली सुनते हैं, यूरोप में जाकर काम करना उतना आसान नहीं है भारतीयों के लिए। जिस प्रकार से हमने देखा कि अमेरिका में पिछले 30-40 वर्षों में बहुत प्रवासी हमारे वहाँ गए, NRIs वहाँ रहे, कनाडा में बहुत गए, तो लेकिन यूरोप में थोड़ा उसके लिए बैरियर था। अभी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें कुछ अश्योर्ड नंबर्स, कुछ वीज़ाज अश्योर किए गए हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स को मिलेंगे, वो वहाँ पर जाकर पढ़ भी सकेंगे। तो एंड पोस्ट स्टडी वीज़ाज वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, तो वो भी वो देने को तैयार हैं। तो अगर हम देखें तो यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ब्रिटेन। तो भारत ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, एक यूके से किया, एक EU से किया है और एक EFTA जो नॉन EU कंट्रीज थी यूरोप की, उनके साथ भी हमने एक एग्रीमेंट किया है। और यदि हम ये तीनों एग्रीमेंट्स मिलाएं तो आप देखेंगे कि भारत ने पूरी तरीके से यूरोपियन जो जोन है वहाँ पर हमारा पूरा एक्सेस अब भारत के पास है और मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों के लिए। Puneet, your comments on the auto industry, because auto parts or auto ancillaries and including assembled automobiles, the EU imposes a duty of 110%. That's going to come down to 10% as well. Of course, these facts and figures will, of course, have to be rechecked. But based on the information that's flowing in right now, there's going to be a transition period. What kind of benefits are we looking at? Foreign direct investment, supply chain access, employment. Auto industry typically brings about a great deal of economic activity. Absolutely, and automobile sector is very integral to overall GDP growth of any country. But off the top of my hat, I will say all the fancy car enthusiasts are very excited. They expect that Mercedes-Benz and BMWs of the world and the premium and luxury cars from Europe will be imported into India. Government has said that cars which are above 15,000 euros and plus, which is approximately 20 lakh rupees plus, will be given concessions in India. 35%, I believe, according to initial reports. It seems like that, but we need to really look at the fine print. But it definitely can be said with surety that premium cars, which we have which are really sought after by younger generation, they will be more easily available in India. I think one of the greatest benefits to India from this free trade agreement will be to the auto ancillary sector, because we have companies which are already exporting automobile components to European companies and countries. I think that will get a big boost because there were a lot of barriers to exporting these components to Europe. They've also increased the quota, I believe. Yes, quotas in fact existed in many, so we had quotas in heavy engineering, we had quotas in textiles and many other pockets of the economy, and those quotas will be either revised or liberalized, or in many cases in fact quotas will be removed. From the first reading of the agreement that we saw, almost 99% of goods which are exported from India to European Union, most of them will get some form of concession or the other. So I think it's a pretty wide agreement. और एक और जो हाईलाइट सामने आ रही है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, एपरल, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इनमें जो ड्यूटीज कम की गई हैं, अप टू 10% थी, अब 0% हो गई हैं। सो आपको लगता है अब हमारे प्रोडक्ट ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे कंपेयर टू अदर एक्सपोर्टर्स, जो और इससे फायदा होगा हमारे MSMEs को और जो लेबर फोर्स है उसको? बिल्कुल सोनू, देखिए ये जो सेक्टर आपने बताया, जो मरीन सेक्टर है, टेक्सटाइल्स है, एपरल्स है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, फुटवेयर है, ये सभी सेक्टर्स, एक तो भारत का इसमें लेबर इंटेंसिव बहुत है, यहाँ बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे इन सेक्टर्स में कंपनीज जो है वो MSME सेक्टर, मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर से वो जुड़ी हुई हैं। और यदि हमें यहाँ पर प्रेफरेबल
एक्सपोर्ट एक्सेस मिलता है, और जैसे आपने बताया कि ज़ीरो ड्यूटी होगी भारतीय जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोप में, तो वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और मुझे लगता है उसका सीधा असर इकोनॉमी को होगा, साथ में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो बहुत अच्छी होंगी। तो मुझे लगता है ये एक, जैसे पहले हमने शुरुआत करा था कि जो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, लेकिन जो सोशल इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल। सो इस उत्साहजनक खबर के बाद चलते हैं शेयर बाजार की ओर, जहां से भी खबर अच्छी है। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली बढ़त पर बंद हुए। दिन भर वृद्धि और मंदी के बीच झूलने के बाद दोनों में कारोबार की समाप्ति तेजी के साथ हुई। सेंसेक्स 0.4% की बढ़त से 320 अंक ऊपर 81,857 पर बंद हुआ। निफ्टी 0.5% की वृद्धि से 127 अंक बढ़कर 25,175 पर बंद हुआ। और बंबई शेयर बाजार का विस्तारित बाजार भी आज तेजी में रहा। मिड कैप सूचकांक में 0.4% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% की वृद्धि दर्ज हुई। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended the session with modest gains today. Both the stock market indices oscillated between positive and negative territory throughout the day before closing higher. Sensex climbed 320 points, 0.4% to close at 81,857, while Nifty added 127 points, or 0.5% to settle at 25,175. The broader market at the BSE also edged upward. The mid-cap index rose by 0.4%, while the small-cap index added 0.1%. कंपनीज पर नजर डालें तो सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 17 के शेयर बढ़त में रहे। सबसे अधिक तेजी दर्ज करने वाला शेयर था 4.5% उछाल के साथ अदानी पोर्ट्स। एक्सिस बैंक के शेयर में भी 4.3% की भारी बढ़त दर्ज हुई और टाटा स्टील का शेयर 2.6% से अधिक वृद्धि पर बंद हुआ। सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा 4.2% लुढ़क गया। कोटक बैंक में 3.1% से अधिक गिरावट आई और एशियन पेंट्स का शेयर 2.8% की मंदी में रहा। Among the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 16 out of the 22 sectors ended on a positive note. In the gainers, metal climbed 3.1%, commodities increased around 1.19%, and PSU banks rose almost 1.8%. On the downside, consumer durables shed 1.2%, auto lost 1%, and consumer discretionary fell 0.7%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,345 companies declined, 1,947 companies advanced, and 181 companies remain unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 23 पैसे की मजबूती से 91 रुपए 72 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 96.91 पर था। पुनीत, लास्ट वीक अच्छा नहीं था बाजार के लिए, नेट गिरावट आई थी, लेकिन इस वीक की शुरुआत आज ही हुई है और बहुत अच्छे नोट पे हुई है। क्या लगता है आपको बाजार की अभी जो स्थिति है वो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? ये ट्रेड एग्रीमेंट का कितना असर देख रहे हैं आप और आगे क्या ट्रिगर्स होंगे? सुनो, जो मौजूदा हफ्ता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हफ्ता है बाजारों के लिए। इसमें बहुत बड़े इवेंट्स हैं, जैसे हमने ट्रेड एग्रीमेंट आज था, वो एक बड़ा इवेंट था बाजारों के लिए। कल यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग है और जिसमें कि इंटरेस्ट रेट पे कोई डिसीजन आ भी सकता है, उनकी कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बजट का भी महीना इस सप्ताह है, जब बिल्कुल एंड में हम बजट भी आएगा, और भी जो कंपनी जगत के जो नतीजे हैं वो अब तेज़ी से आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये अब इवेंट्स जो हैं वो बहुत जल्दी और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट मार्केट के लिए आ रहे हैं। हमने देखा कि बाजारों में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ी है, उतार चढ़ाव थोड़े फास्ट हुए हैं, लेकिन आज भी काफ़ी वॉलेटाइल बाजार रहा। और क्योंकि बाजार पिछले सप्ताह 4% गिरे थे, तो थोड़ा आज पुल बैक था, थोड़ा वहाँ पर रिकवरी थी। पर मुझे लगता है ये आने वाले शायद 1 या 2 सप्ताह, पर्टिकुलरली बजट के बाद जो मार्केट का रिएक्शन होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद ये बाजार सेटल करेगा। बट डेफिनेटली आई थिंक वी आर हेडिंग फॉर सम वॉलेटिलिटी इन नेक्स्ट 2 weeks. Puneet, the banking sector went up by 732 points, the Nifty Bank specifically. The PSU Bank Index also went up, a major gainer
Why is that the case? What's going to happen? Are there going to be some very interesting developments in the budget announcement? So market is expecting some relief in terms of taxation of deposits, etc. So there are various expectations the market has vis-a-vis savings in the budget, but I do not know whether these expectations will be answered or not. But I think the markets are basically reacting to positive sentiment on the economic side, on the trade side, and also please remember that today was the day when there was a monthly expiry of all options for Bank Nifty also, because now we have a monthly expiry. So today was the day when Bank Nifty, we had a monthly expiry. So there was bound to be some volatility, some sharp moves, which we saw today. But I think going forward, one sector that we have seen which is very stable even amid the fall in indices was the banking sector last couple of weeks. So I think banking is sending a message that we are in more stable waters than the markets were fearing. So अभी की जो स्थिति है उसमें आपका एडवाइस क्या होगी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, किस तरह का अभी उनका रवैया होना चाहिए बाजार की तरफ? तो सुनो देखिए, बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है मार्केट्स के लिए. काफ़ी गिरावट हमने देखी है और मिड कैप स्मॉल कैप जहाँ पर ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड होते हैं वहाँ पर गिरावट आई है. मुझे लगता है थोड़ा वॉलेटाइल समय रहेगा अगले आने वाले 1-2-3 महीने, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए. बहुत ज़्यादा देखिए कोई पैनिक में सेलिंग की तो बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ कर के एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए. कॉशियसली स्लोली ट्रेड करना चाहिए. आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख सकारात्मक रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक 2.7% से अधिक के उछाल में रहा. हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक 1.3% से अधिक और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में लगभग 1.3% की वृद्धि दर्ज हुई. जापान का निक्केई सूचकांक 0.8% से अधिक बढ़ गया और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.2% की वृद्धि दर्ज हुई. इस बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दक्षिण कोरिया पिछले वर्ष हुए व्यापार समझौते के अनुसार नहीं चल रहा है और उन्होंने घोषणा की कि वह उस पर लगने वाले टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 15% से बढ़ाकर 25% कर रहे हैं. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां के प्रमुख सूचकांक आज सकारात्मक प्रदर्शन कर रहे थे. दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 0.5% से अधिक बढ़ गया था. फ्रांस के कैक और जर्मनी के डैक्स दोनों में 0.3% से अधिक वृद्धि चल रही थी. दक्षिण कोरिया पर आपकी टिप्पणी. ऑफ लेट हमने देखा कि दक्षिण कोरिया का बाजार काफी आउटलायर था, पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ. कई बार उसमें बढ़त होती थी जबकि बाकी जगह मंदी होती थी. लेकिन अब ये जो अनाउंसमेंट आई है टैरिफ्स को लेकर, क्या लगता है आपको इसके क्या असर दिखाई देगा? देखिए दक्षिण कोरिया के साथ जो यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसको काफी ज्यादा महत्व दिया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और उनका कहना यह था, एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया था कि देखिए जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ हमने ऐसा एग्रीमेंट किया है और यूरोपियन देशों के साथ भी वो ऐसा एग्रीमेंट करने की बात करते थे. पर क्योंकि ये सेटबैक लगा है तो मुझे लगता है जो पूरी ट्रेड स्ट्रेटजी है यूएस को, उनको रीअसेस करनी पड़ेगी. एंड डेफिनेटली आई थिंक यूएस विल बी जोल्टेड बाय मेजर एग्रीमेंट्स हैपनिंग बिटवीन अदर कंट्रीज. तो डेफिनेटली कोरिया वाला जो है एक सेटबैक है यूएस ट्रेड पॉलिसी के लिए. Well, let's have a look at the US markets now. Wall Street ended higher yesterday as investors prepared for several big company earnings reports and an update from the Fed Reserve on interest rates later this week. Among the major stock market indices, the Dow Jones Industrial Average gained over 0.6% and the S&P 500 rose 0.5%, and the Nasdaq Composite Index added more than 0.4%. Puneet, the Fed fund rate that we understand as the repo rate is 3.75%. The overnight lending rate, what we call it as discount rate, is 3.5 to 3.75%. The key reason being that the Fed Reserve encourages banks to borrow from each other before they borrow from the central bank itself. What kind of cuts are we likely to see in the Fed rates? So it'll stimulate the market. So as far as the meeting tomorrow is concerned, I don't think market is expecting any cut because they expect Fed to pause interest rates, look for further economic data and then decide. If you look at the overall picture, the Fed interest rates are already in the neutral zone. So they don't have much room to really cut the rates aggressively. They're already in the zone of 3.5 to 3.75, which is the neutral zone. Maximum 100 basis points over the next 1 year maybe. But I don't think there's much headroom there for Fed to cut rates. Linkage to inflation?
Yes, in fact, if inflation goes higher, inflation is already 3% in USA, which they're tolerating, I would say. But if it heads higher because of tariff situation and trade situation, then they will be constrained not to cut rates at all. आगामी बजट की गहमा गहमी से जुड़ी है हमारी अगली खबर। केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों का अंतिम चरण आज नई दिल्ली में हलवा समारोह के साथ शुरू हुआ। समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मंत्रालय के सभी विभागों के सचिव और बजट तैयारियों में शामिल अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की और पूरी बजट टीम को शुभकामनाएं दी। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। In more news from the energy side, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र के लिए अवसरों का देश है और वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों के शीर्ष 5 निर्यातकों में से है। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहाँ एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है। आपकी छोटी सी टिप्पणी, ये जो हमारी वर्चस्व है एनर्जी सेक्टर में भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए अब धीरे धीरे भारत इसमें आगे बढ़ रहा है और जो हम ट्रेड डील्स कर रहे हैं ये इसका काफी बड़ा असर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे पड़ेगा। let's have a look at global crude prices. Global crude oil prices fell marginally today as a massive winter storm hit crude production and affected refineries on the US Gulf Coast. Brent crude was trading almost 0.3% down at $65.42 per barrel, and WTI crude was trading 0.2% up at $60.51 per barrel when reports last came in. Again, the linkage to India, because President Trump has said that India's imports from Russia has fallen by 40%. There are some conditions that, geopolitics, and they end their war and then India can resume full supply from Russia. But how do you see the energy situation right now for India vis-a-vis global crude oil prices? So for India, the situation is actually pretty comfortable because we see a lot of new supply coming in, even from Venezuela, which was the market close to us completely. So I think India is in a comfortable position in the foreseeable future as far as oil is concerned. और आइए अब चलें प्रेशियस मेटल्स की ओर। In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.7% up at 1,59,440 rupees per 10 grams. Silver was trading 8% up at 3,62,580 rupees per kilogram a short while ago. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिन के कारोबार में फरवरी अनुबंध वाला सोना 1.6% से अधिक बढ़त के साथ 1,58,569 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 8.2% से अधिक उछाल दर्ज करती हुई 3,62,196 रुपए प्रति किलो हो गई। चांदी के बारे में बताएं कि इतनी जो तेजी आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये स्थायी है, बबल है, क्या है? देखिए सोनू, अभी तो ये बिल्कुल एक बबल जोन में ट्रेड कर रहा है क्योंकि काफी बड़ा ट्रेडिंग स्पेकुलेटिव इसमें एक्टिविटी चल रही है और खासतौर से जब यूएस डॉलर में जो गिरावट हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में, वो भी फ्यूल कर रहा है स्पेकुलेशन को कमोडिटीज में और बुलियन में। तो मुझे लगता है अभी बहुत वोलेटाइल है, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली वैल्यू रहेगी मेटल्स के अंदर। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? कॉशियस? देखिए कॉशियस रहना चाहिए बिकॉज ये डेफिनेटली बबल अभी तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इसमें ज्यादा हो रही है, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा इसमें एग्रेसिव ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है और जिसके पास बचत के तौर पे अगर आप कर रहे हैं तो ये ठीक है। समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। पुनीत, आप आए, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of the headlines. India and the European Union sign a historic trade deal. Prime Minister Narendra Modi and President of the European Commission, Ursula von der Leyen, hailed the agreement as a mother of all deals. Benchmark domestic stock market indices end higher. Sensex adds over 320 points. Nifty settles at 25,175. And major Asian stock market indices close with gains. And that's it in this edition of Market Mantra. For now,
Goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.